Sir, good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Sir, how are you, sir? Ready, sir? Sir, मैं ready हूँ, sir. Rubin, sir, can I start? Please, sir. Please, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for your kind cooperation. Rubin, sir, my voice is clear and my screen sharing is appeared, sir. Please check once only. Then I continue. Yes, ये आपका presentation show हो रहा है. Voice में थोड़ा volume कम है क्या, sir? ठीक है, sir. Okay, sir. Okay, sir. थोड़ा कर लीजिए आप, increase कर लीजिए अगर आपको करना है तो. हाँ, वही मेरा वो क्या कहते हैं, दूसरे सर भी काम में लेते हैं ना. Okay, sir, it is enough for 100%. वैसे हमारी तरफ से your voice is perfectly Okay, fine. sir. Good morning, all of you. Good morning, respected teachers and staff and students. Welcome to today our Visual Basic Applications, Visual Basic for Applications topic, Objects, Properties and Methods. आज का ये सुबह काल समय में सभी को विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस सब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स टॉपिक्स में मैं स्वागत कर रहा हूं. मैं आई होप दैट ऑल आर इन फाइन. मैं आशा रखता हूं आप सब ठीक हैं, सुरक्षा में. Last class, just I was giving a little bit introduction of this objects, properties and methods. But today we can discuss deeply in a proper manner. आज का क्लास में हम एक तरीके से properly step by step हम डिस्कस करेंगे आज का दिया गया टॉपिक के बारे में. आई एम थैंकफुल टू ऑल माय PG staff and IT cells and NIMI staff members, as well as my HOD madam, Pati Seth madam and principal madam Sashi Madhur madam, and my staff members. My special thanks to all my COPA students and CSA who are participating today my virtual class. Friends, this is my mobile number and email address. I think you know very well about this one today. This class is delivered from National Skill Training Institute from Women, Noida. आज का ये वर्चुअल क्लास है NSTI नोएडा के द्वारा, नोएडा से ही निमी जूम ऐप के द्वारा ही डिलीवर कर रहे हैं. So friends, today our means class main topic is
objective properties and methods. So before going to discussing about directly this object, as a IT students, IT people should know one thing. There are so many computer languages are there, the world. After completion of the procedural oriented programming language, further they are developed and introduced object orienting programming, OOPS concept. In that OOPS concept, mainly these object oriented programming fulfill the class, object, encapsulation, abstraction, polymerization, and inheritance. But we are not discussing all these things here because VB is directly not a OOPS concepted programming, but it can support the OOPS objects. एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर एक क्लास का फंडा है, क्लास डिफाइन करने के बाद ऑब्जेक्ट्स, फिर ऑब्जेक्ट्स के बाद एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंसेस. तो एक क्लास को डिफाइन करने के बाद यू कैन क्रिएट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, can control that object's behaviors and accessing by using functions or methods. So for example, C#, C++, VB.NET, Java programming, all these are comes under the OOPS, object-oriented programming languages. As a IT student, Scope and CSA, at least we know what is meant by the OOPS and what are the languages that support the OOPS concept. Objective oriented programming languages or C++, C#, VB.NET, Java programming, all like that. So friends, please concentrate on today our VBA topic, objects, properties and methods. In VBA, an object represents an element of an application such as worksheet, a shell, a chart means graph, or a form or a report. VBA के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स किसको कहते हैं? An element of an application. Suppose हमने स्टूडेंट टास्क के लिए, एक स्टूडेंट के लिए छोटा से एक प्रोजेक्ट किया हम लोगों ने, प्रोजेक्ट वर्क पिछले 2 हफ्ते के अंदर. So we have created one form, student form. Data is stored in back in the Excel sheet. Again, that Excel sheet stored in the workbook. So that form again contains number of form controls like label, text box, combo button, radio button, so many form controls. हमने क्या किया पिछले 2 हफ्ते के अंदर, हमने एक एप्लीकेशन सिंपल छोटा से एक स्टूडेंट्स के लिए एक एप्लीकेशन बनाया है. स्टूडेंट्स का फॉर्म डिजाइन किया हमने, फिर फॉर्म का द्वारा डाटा को एक्सेल शीट पर सेव किया है बैकएंड में, फिर वही एक्सेल शीट एक वर्कबुक के अंदर हमने स्टोर किया स्टूडेंट नाम से. फिर स्टूडेंट फॉर्म के ऊपर बहुत सारे फॉर्म कंट्रोल्स को रखा है हमने. उदाहरण के लिए एक लेबल, फॉर्म कंट्रोल लेबल, फॉर्म कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स, फॉर्म कंट्रोल कॉम्बो बटन, ऑप्शन बटन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, कमेंट बटन. So all are placed in the form. With the help of all these form controls, we are implemented that application. So here that application is called as an object. Workbook is one of the application. So it is also called as one workbook. Worksheet is also one application because we have created number of
are different types of work data can stored in a workbook. One sheet you can store the student admission particulars. Second sheet, students monthly attendance. Third sheet, students internal sessional test marks. Fourth sheet, students mobile number and contact numbers. Fifth sheet, like who students are eligible for appear the final exam final trade text. Or sixth sheet, students bank details. A seventh sheet, students final exam P particulars. Like you can store or insert number of worksheets in a workbook. So due to that reason, that worksheet is also one of the object. Cell, range, font, form, command button, text box, like that. All these are called as objects in VBA. VBA के अंदर ये सारे चीजों को हम और भी इसी तरह बहुत सारे सपोज सारे फॉर्म कंट्रोल्स ऑब्जेक्ट्स में ट्रीट करते हैं. ओके, we can see detail in practical through that VBA means Excel VBA, but theoretically we have such an idea. मतलब VBA के अंदर ऑब्जेक्ट्स किसको कहते हैं, कम से कम मिनिमम फंडा तो समझ में आना चाहिए. एक वर्कबुक को हम एक ऑब्जेक्ट कहते हैं, वर्कशीट को ऑब्जेक्ट कहते हैं. वर्कशीट के अंदर सेल्स मींस रेंज और फॉन्ट, फॉर्म के अंदर सारे कंपोनेंट्स, फॉर्म कंट्रोल्स, कमेंट बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लाइक. तो ऑल दीज आर कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट्स इन VBA. आपको ऊप्स लैंग्वेज का फंडा समझ में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट VBA के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्या हो सकता है, ये चीज तो आपको समझ में आना चाहिए. एज ए टीचर आई वांट टू गिव एन एग्जांपल हियर. Suppose what are the advantage of this OOPS means once you are created a class, you can create number of objects and usage number of tasks. For example, class. So I think according to my opinion, suppose in human being life, in education systems, suppose they are constructed one classroom. इंसान का जीवन में विद्या संस्था में मीन्स एजुकेशन फील्ड में क्या है, हर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कहीं भी यूनिवर्सिटी हो सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, NIT, स्कूल, कॉलेज, whatever it may be. The simple funda is classroom. So if they are constructed or they are made a classroom, in that classroom, if they want to conduct the class from the primary or first standard, after finishing that period, in the same class, they can conduct the 10th class or 10+2 or graduation or different branches, electronics, computers, mechanicals. A classroom have minimum means properties, characteristics like blackboard or whiteboard, chalks or marker pens, chairs or benches, teacher table. So all these are the properties of that particular classroom. So once they are constructed or they are made a classroom, please try to understand one particular branch is one of the objects or one particular class is one of the object of that class. So in the same way, due to that reason, OOPS are much more dynamic role nowadays they are playing in the programmings. You can manage the database or even web designing. Okay. इसलिए आजकल दिन में ये OOPS कॉन्सेप्ट का सहारा से OOPS कॉन्सेप्ट सपोर्टेड सारे लैंग्वेजेस एक डायनेमिक एक रोल प्ले कर रहे हैं अभी डेटाबेस मैनेज करने के लिए, नहीं तो वेबसाइट डिजाइन करने के लिए भी. तो VBA Visual Basic for Application is not a directly OOPS concept, but it can support the objects concept. So these are the
objects of the video. A collection is an object that contains several other objects. Suppose I was explaining this one workbook, worksheet. Again, these are further collection number of items. Suppose a number of workbooks comes under the workbook objects, or a workbook contains number of worksheets. एक वर्कबुक के अंदर हमें पता है बहुत सारे वर्कशीट्स को सेव कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं. Just I was given the example. So worksheet, again a worksheet contains number of rows and columns, range, cells, or forms. Again, the form contains form controls, text box, comment button, combo box. So these are the collections. A collection is also an object that contains several other objects, like just an example, workbooks, worksheet, forms. These are having further collections of the objects. If an object is there, the object having two things. One is properties. Second one is methods. An object have two things. One is properties. Second one is method. Now we are discussing about the properties. A property is an attribute of an object that defines one of the object's characteristics, such as size, color, or location, or an aspect of its behavior, such as whether it is enable or visible, disable. हमने फॉर्म डिजाइन करते समय पर हमने प्रॉपर्टीज देखा है. फॉर्म प्रॉपर्टीज, कैप्शन, फॉन्ट, बैकग्राउंड कलर, फोर कलर, फ्रंट कलर, फॉर्म विड्थ and form height. So those are the characteristics of that particular form, properties. So please try to understand. मैं आपसे ये समझाना चाहता हूँ, हमने स्टूडेंट फॉर्म डिजाइन करते समय पर, फॉर्म्स के अंदर काम करते समय पर हमने देखा है फॉर्म्स पर क्लिक करने के बाद F4 की दबाने की वजह से फॉर्म का प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टीज विंडो के अंदर देखा है हम लोगों ने. कैप्शन चेंज करने की वजह से फॉर्म का हेडिंग बदलते थे. बैकग्राउंड कलर चेंज करने की वजह से फॉर्म को ऊपर बैकग्राउंड कलर फिलअप हो जाती थी. फॉर्म का हाइट विड्थ हमने देखा है. फॉर्म को ऊपर फॉन्ट साइज करने की वजह से बाद में जो भी एक फॉर्म ऑब्जेक्ट को रखने की वजह से दिस फॉर्म फॉन्ट ऑटोमेटिकली अप्लाई टू दैट फॉर्म कंट्रोल्स. अगर एक फॉर्म का एक फॉन्ट सेट किया तो वो फॉन्ट एज ए ग्लोबल फॉन्ट जैसे फॉर्म के ऊपर हमने टेक्स्ट बॉक्स या कॉम्बो बॉक्स, लेबल, जो भी एक फॉर्म कंट्रोल फॉर्म को ऊपर रखने के समय पर उस पर्टिकुलर फॉर्म कंट्रोल को भी ही उस फॉन्ट का प्रॉपर्टीज मींस फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर मान लीजिए, नहीं तो फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, साइज, फॉन्ट नेम, ये सारी चीज ऑटोमेटिकली अप्लाई करते थे. तो दोज आर द कॉल्ड एज प्रॉपर्टीज. ओके, सो प्रॉपर्टीज इज नथिंग बट स्पेसिफिकेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स of an object. So property is nothing but characteristics of an object. अगर इतना लंबा चौड़ा अंग्रेजी डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आए तो आप ये याद कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज का मतलब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिकेशंस. If you suppose a marker pen is there, so marker pen is one of the object. The marker pen made by company, one property. Marker pen color, second property. Marker pen price, cost, third property. So please try to understand. Marker pen is the one of the object. Marker pen making by means company name. That marker pen color, blue, red, like that. Marker pen cost. So these are the properties. So font object properties are font name, font size, font color, font style. All these are properties of the font. In human being life also, people having this type of properties, जो संपदा कहते हैं,
एक पिताजी के लिए अपना संतान प्रॉपर्टी है, जो बच्चे लोग उनका कंपनी है, उसका जमीन, उसका मकान। जवान बच्चे के लिए अपना खूबसूरत, वही एक प्रॉपर्टी, एक इंटेलिजेंसी। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। इंसान का जीवन में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेसिफिकेशंस। इफ ए पर्सन वांट टू सर्च लाइफ पार्टनर in Shaadi.com or some other websites, they want some characteristics, specifications: height, weight, color, nature, habits. So please try to understand the object and properties. ये human being is, इंसान एक object है, इसका अंदर suppose इनका white color, black color, मान लीजिए height, short and medium, long, appearance, इसका nature, habits, all these are characteristics or properties. So range object properties are cell, count, value, etc. range का properties से क्या है? cells, count, value. form object properties are caption, font, height, width. ये तो visible, enable or disable, मतलब फॉर्म रन करते समय पर शो करना है, नहीं तो छुपाना है उसको. ऑल दीज आर फॉर्म प्रॉपर्टीज. To change the characteristics of an object, you can change the values of its properties. एक ऑब्जेक्ट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करने के लिए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का प्रॉपर्टीज को चेंज करना पड़ेगा, वैल्यूज को सेट कर सकते. We connect an object to its property by a period or a dot or full stop. हमने कोडिंग में लिखा range dot value is equal to 100, या तो समय ने स्टे नोएडा एड्रेस वगैरह टाइप करते समय पर. ओके, so value is one of the property. Range object. So the following example shows how we connect the property value to the range objects. Range object के साथ हमने ये वैल्यू प्रॉपर्टी का साथ वैल्यू प्रॉपर्टी का साथ कैसे हम वैल्यू को पास कर रहे हैं. ये 1 से लेकर 8 तक हर सेल का अंदर 100 वैल्यू को लिखने के. रेंज सबको पता है, ग्रुप ऑफ कंटिन्यूअस सेल्स, either it is in rectangular shape or square shape. रेंज का मतलब कंटिन्यूअस सेल्स है, छोटे से छोटा आसान डेफिनेशन. कंटिन्यूअस सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स. बट एक कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ सेल्स मींस एक से अधिक सेल्स को ग्रुप कहते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स लेकिन कंटिन्यूअसली होना है. एक रेक्टेंगल शेप में नहीं तो एक स्क्वायर शेप में. 2-3 सेल्स एक जगह पर लिया और बाकी जगह पर 2-3 लिया तो उनको रेंज नहीं कहते हैं. ओके, तो A1 से लेकर A10 कॉलम का साथ रिप्रेजेंट किया तो वही एक रेंज. Cell is also an Excel VBA object, but it is also the property of a range object. Cell भी एक ऑब्जेक्ट VBA के अंदर, लेकिन सेल आपस में एक रेंज के अंदर है, रेंज का ऑब्जेक्ट है. So an object can also be a property. It depends upon the hierarchy of the objects. उसका कुछ हायरार्की मींस लेवल ऑफ प्रायोरिटी डिफाइन किया गया है. रेंज हैज हायर हायरार्की. फिर रेंज के अंदर सपोज एक सेल्स में मान लीजिए इंटीरियर हैज लोअर हायरार्की ऑफ द सेल्स. अगर बीच में सेल है, रेंज और सेल, क्योंकि रेंज हमें पता है एक से अधिक सेल्स है, एक सिंगल सेल और रेंज. सो रेंज हैव हायर हायरार्की, इंटीरियर हैविंग lower hierarchy of the cells. For range A1 to A3 cells 1,1 interior color is equal to VP yellow means हमने रेंज डिक्लेयर किया A1 से A3 तक. सेल्स 1,1 मींस सेल्स कमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, रेंज के बारे में भी डिस्कस किया. सेल्स 1,1 मींस फर्स्ट वन विल इंडिकेट द रो, सेकंड वन इंडिकेट द कॉलम. 1,1 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 1. तो A1 सेल का कलर येलो कलर कर देगा, लेकिन हमने A1 से लेकर A3 तक एक रेंज डिफाइन किया. तो रेंज इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्ट. फिर आपस में सेल
रेंज के लिए एक ऑब्जेक्ट, फिर एक सेल के अंदर एक सेल को डिफाइन किया हमने, तो उस पर्टिकुलर सेल का जो कलर है वो इंटीरियर सेल से लोअर प्रायोरिटी है। Font is an object which is belongs to the range object. Font has its own properties. Font भी एक ऑब्जेक्ट है VBA के अंदर। सपोज रेंज A1 से लेकर A4 या तो A1 to A10, font dot color is equal to VB yellow। इस कमेंट का सहायता से क्या करेगा, A1 से लेकर A4 चार सेल्स को मतलब एंटायर रेंज का फॉन्ट कलर यानी टेक्स्ट कलर येलो कलर अप्लाई करेगा। The color property of the object font will fills the contents of the A1 to cell A4 with yellow color। Just वही नीचे डिस्क्रिप्शन दिया। देखिए सारे प्रॉपर्टीज फुल फॉर्म टाइप करने के लिए जरूरत नहीं है। There is no need to type the properties entire names. In Excel VBA, IntelliSense will display a drop-down list of the proposed properties after you type a period at the end of the object name। आपको सपोज एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का प्रॉपर्टीज जानना चाहते हैं तो जानना है, VBA के अंदर कोडिंग टाइप करते समय पर सपोज रेंज A1 ब्रैकेट क्लोज करके डॉट टाइप करिए, फिर रेंज का रिलेटेड सारे प्रॉपर्टीज लिस्ट डिस्प्ले कर, देन सेलेक्ट द प्रॉपर्टी यू वांट टू, डबल क्लिक ऑन इट और हाईलाइट। सपोज आप क्या एरो की से मतलब एंटर दबा सकते हो, डबल क्लिक कर सकते हो प्रॉपर्टीज लिस्ट में से जो भी लिस्ट आपको चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे रेंज A1 से लेकर A1 डन डॉट फॉन्ट डॉट, अब डॉट टाइप करते समय पर ये चीज देख सकते हैं। मैसेज बॉक्स वगैरह टाइप करते समय पर VB बटन के लिए यस और नो, ओके, कैंसिल, हमने देखा टाइप करते समय पर डॉट टाइप किया तो ऑटोमेटिकली वो लिस्ट आने लगा, तो ऑटोमेटिकली these are the properties will be displayed। Count is also one of the property of the range object. It shows the number of cells in the specified range। दिया गया रेंज के अंदर न्यूमेरिक सेल्स को गिनती करना है तो ये काउंट फंक्शन का सहायता सब कर सकते हैं। काउंट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द रेंज ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देखिए, डिम टोटल काउंट एज इंटीजर, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, टोटल काउंट इज वन ऑफ द वेरिएबल बट दिस काउंट इज, जो रेंज का आगे डॉट काउंट लिखा है ये काउंट प्रॉपर्टी है। रेंज एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का रेंज हमने डिक्लेयर किया A1 से लेकर A6, तो रेंज ऑफ A10 is equal to count, is equal to means assignment operator, so right side it will execute first, so right side t count है क्या, एक वेरिएबल, फिर t count को हमने कैसे कैलकुलेट किया, एक रेंज ऑब्जेक्ट का द्वारा काउंट प्रॉपर्टी से। तो काउंट करने के बाद जो भी एक वैल्यू है that value will be written or stored in the t count total count variable के अंदर। फिर उस टोटल काउंट के अंदर जो वैल्यू है हमने एक्सेल सेल पर रेंज A10 पर डिस्प्ले कर रहे हैं। Now we will enter into the methods. Methods normally do something or perform certain operations, behavior, actions. Okay, so like in functions now, the functions can behavior of the objects or classes. So here through these methods we can change the behavior of the objects. The methods normally do something or perform certain operations. For example, clear content is a method of the range object। range objects के बारे में हमने डिस्कस किया। अब इस रेंज ऑब्जेक्ट के द्वारा सपोज इसका कंटेंट्स को क्लियर करना है, सो क्लियर कंटेंट्स इज वन ऑफ द मेथड। वैल्यू पास कर रहे हैं, दैट इज आल्सो अ मेथड वैल्यू रिटर्न करने के लिए, लेकिन दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी, वैल्यू प्रॉपर्टी। Here you can also select your own range of the cells and clear the contents by using the input box function and clear contents method। हमने क्या कर सकते हैं कि एक्सेल रेंज, एक्सेल शीट के अंदर रेंज A1 से लेकर A10 के लिए A1:A10 डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं हम रेंज के अंदर, लेकिन कीबोर्ड से भी रेंज रीड करना चाहते हैं तो अपना इच्छा के अनुसार रैंडमली इनपुट बॉक्स का सहायता से रेंज को रीड कर सकते हैं। एक तो वेरिएबल डिक्लेयर किया सेलेक्ट रेंज नाम से, फिर सेलेक्ट रेंज इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर योर, जैसे हमने फॉर्म में नहीं तो कई सिंपल इंटरेस्ट वगैरह
नहीं तो एड्रेस टाइप करते समय पर ग्रेडिंग एंटर योर नेम इनपुट बॉक्स लेफ्ट साइड नेम लिखते थे इज इक्वल टू आगे राइट साइड इनपुट बॉक्स स्ट्रिंग. So here the concept is same, but how can you means specify that one range like this? Select range is one of the variable, data type is string. So select range is equal to input box, enter your range A1 colon A10 type करना पड़ेगा आपको input box का अंदर. So that will be treated as a range. So range, select range, जो भी हमने range कीबोर्ड से देते हैं उस range के अंदर contents को clear कर सकते हैं. और entire worksheet contents को clear कर सकते हैं. A1 से लेकर पूरा मतलब एंटायर वर्कशीट के अंदर कंटेंट्स एक सिंगल कमेंट से मिटाना चाहते हैं तो क्लियर करना चाहते हैं तो sheet1 डॉट सेल्स डॉट क्लियर कंटेंट्स. फॉर्मेट्स क्लियर करने तो sheet1 डॉट क्लियर सेल्स डॉट क्लियर फॉर्मेट्स. sheet1 डॉट सेल्स डॉट क्लियर इट कैन क्लियर एंटायर द फॉर्मेट्स कंटेंट्स और वैल्यूज व्हाटएवर इट मे. कई बार होता है ना, आपने देखा होगा एमएस एक्सेल में एक स्टेटमेंट टाइप करते समय पर हम क्या करते हैं, कॉलम को डिफरेंट विथ सेट करते रहते हैं, हम बॉर्डर्स अप्लाई करते हैं, सम फॉर्मूलास अप्लाई करते हैं, सम सब्ट्रैक्शन वगैरह, अलग अलग फॉन्ट्स अप्लाई करते हैं. फॉन्ट साइज मींस font size, font color, font style, all these are bold, italic, underline, all these are comes under the fonts formats. So these formats केवल formats को क्लियर करने थे. आपको पता है क्लियर होम मेन्यू में क्लियर नाम से फंड है, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर बॉर्डर्स लाइक दैट. और समटाइम्स कॉपी एंड पेस्ट, पेस्ट स्पेशल कमांड अप्लाई करके देखिए, केवल कंटेंट्स को कॉपी कर सकते हो, केवल कॉलम विड्थ को कॉपी कर सकते हो, केवल फॉर्मेट्स को कॉपी कर सकते हो. तो एंटर वर्कशीट के अंदर कंटेंट्स को मिटाना है, फॉर्मेट्स को मिटाना है, तो ये मेथड का सहारे से, क्लियर मेथड का सहारे से हम कर सकते हैं. ठीक है, प्रैक्टिकली हम अब देखेंगे. टू सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स यूजिंग ए मेथड, सेलेक्ट मेथड से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं. कैसे? डॉट सेलेक्ट, रेंज का आगे डॉट सेलेक्ट लिखने की वजह से सो डिफाइन किया गया, मेंशन किया गया रेंज को सिलेक्शन में, एक्टिव में, सिलेक्शन में ले लेते हैं. रेंज A1 से लेकर A10 डॉट सेलेक्ट मींस एंटर ए सेल A1 से लेकर सेल A10 तक सारे 10 सेल्स को सेलेक्ट करेगा. सो व्हेन यू आर अप्लाइंग सेलेक्ट, कॉपी करने के लिए या तो कट करके कुछ और फॉर्मेट्स वगैरह पेस्ट करने के लिए, ठीक है ना. तो सेलेक्ट कमेंट का सहारे से रेंज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं. सेलेक्ट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ द रेंज ऑब्जेक्ट. ओके, सो फ्रेंड्स, what are the things we are discussed here? Now we are implemented through practically. So देखिए, बहुत ज्यादा बता के कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं, और एक क्लास नेक्स्ट क्लास में मींस मंडे क्लास में और क्लियरली डिस्कस करेंगे वर्कशीट, वर्कबुक का इंडिविजुअल मेथड्स एंड इवेंट्स in next class. But what are the things we are discussed? Those things within the 10-15 minutes we want to do practically. Now the time is 10:40. So look at here, I want to conclude this presentation. Today our class, just we are discussing about the object, what is meant by the object. In VBA, an object is an element of an application. That is workbook or worksheet, cell, range, font, form, command button, text box, all these are comes under the objects of the VBA. Again, an object is a collection of collection. A collection is also an object, means group of cells, range na. Suppose you have the workbook, number of worksheets, again worksheet, number of rows and columns, then forms again contains number of form objects, text box, label, combo box, check box, like that. So these are the collections. These collections also called as an object in VBA. So properties are nothing but characteristics of an object. Okay, so font के लिए name, size, color, style. Range के लिए cells, font, value. Form के लिए form, object के लिए properties, caption, font, height, like that. Then value property को कैसे implement कर सकते हैं हमने, ये कोडिंग में लिखा है. सिंगल सेल के लिए हमने लिखा range A1 dot value is equal to NST Noida, लिखते थे हमने from the beginning. Okay.
तो देन आफ्टर दैट रेंज के अंदर एक सेल भी एक प्रॉपर्टी है। तो अगर एक पर्टिकुलर सेल की बात करते तो रेंज का आगे उस सेल का एड्रेस रेफरेंस बताने की वजह से पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेल का फॉन्ट नेम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर अप्लाई कर सकते हैं और स्टाइल वगैरह। फॉन्ट इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। रेंज का सेल, जब से सेल एक रेंज के लिए मतलब ऑब्जेक्ट है, इसी तरह फॉन्ट भी एक रेंज के लिए ऑब्जेक्ट। तो रेंज A1 से लेकर A4 डॉट फॉन्ट कलर VB येलो कलर से फिलअप करने के लिए ये सिंटेक्स है। फॉन्ट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द रेंज। तो इसी तरह हमने पर्टिकुलर रेंज के पूरा ऑब्जेक्ट मतलब प्रॉपर्टीज को टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ते थे। डॉट ऑब्जेक्ट नाम टाइप करने के बाद डॉट टाइप किया तो ऑटोमेटिकली वो लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज शो करते रहते हैं। ठीक है, अभी ज्यादा नहीं, जितना भी हमने डिस्कस किया इन चीजों को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, नाउ आई वांट टू स्टॉप दिस वन। आई वांट टू ओपन MS Excel new sheet. I want to share this one. Friends, please look at here. So from there, initially, suppose at the time of you are discussing, if you want to see by default properties, अगर मान लीजिए एक एक्सेल सीट के लिए किसी भी नियत, ये देखिए इधर ऑब्जेक्ट्स, डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स, so all libraries, these are the objects names, and right side it can display methods and properties which are mentioned like a eraser symbol. These are the maximum, these are methods. Without that box, some light green color remaining over there, so those are called as properties. Cells, suppose one property, color one property. Okay, bus day one method, date property. ये कहाँ से आया, ये मैं दोबारा दिखाना चाहता हूँ ना। सिंपली वही स्टूडेंट फॉर्म जो हमने डेली डिजाइन करना है वही फाइल को मैंने खोल रखा है, लेकिन नया शीट, न्यू शीट के अंदर शीट से कोई लेने देना नहीं है। डेवलपर विजुअल बेसिक पर जाने के बाद ये है स्टैंडर्ड टूल बॉक्स के अंदर। देखिए ये टूल बॉक्स का लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट ब्राउजर, इसको क्लिक करने की वजह से सारे ऑब्जेक्ट्स का लिस्ट दिखाई। फिर इसका मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज, राइट। अगर सपोज हमने किसके बारे में डिस्कस किया, बातचीत के सेल्स के बारे में डिस्कस किया, रेंज के बारे में डिस्कस किया है। अभी आई वांट टू फाइंड आउट द रेंज MNOPQR। ये देखिए रेंज, तो ऑल दीज रेंज रिलेटेड methods and properties. Okay, I think you people sir understand. आप लोगों को समझ में आया होगा प्रॉपर्टीज कहाँ देखना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट all the properties and methods are objects, okay, inbuilt. Then now we want to close this. This is our form. Want to go to MS Excel sheet 9. Okay, then after that just we are discussed about the range. अभी suppose देखिए insert a command button, ActiveX command button 1, सिंगल क्लिक, इसमें नहीं आ रहा वो फॉर्म में, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, कैप्शन चेंज कर सकते हो, नहीं कर। अभी हम अपना मेंस जो भी है टास्क फुलफिल करना है।
क्या करना, अभी रेंज के बारे में हमने डिस्कस किया, रेंज ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमने कहा A1 से लेकर A10 तक 100 को फिलअप करना है। सो फिलअप करने के लिए डबल क्लिक किया मैंने। ओके, शीट 9 एक्सेल पर गया, ये रहा, डबल क्लिक, I will enter into the coding window, then range, after that range specification A1 से लेकर A10, then after that value is equal to 100, colon, मैंने column टाइप नहीं किया है। ओके, is a range A1 colon A10 double quotation के अंदर। Now you want to go to the MS Excel, you want to run, get here, मतलब रेंज ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया, वैल्यू प्रॉपर्टीज द्वारा एक वैल्यू को फिलअप किया, हम लिखा है पर्टिकुलर A1 से लेकर A10 तक अंदर 100 से हमने फिलअप किया। ओके, अब और एक डेवलपर इंसर्ट, यस सर। सर नो सर, आपके लिए नहीं किया। तो फ्रेंड्स प्लीज लुक एट हियर, अभी रेंज कमेंट से हमने A1 से लेकर A10 तक हमने फिक्स किया, मतलब 100 से फिलअप किया। अभी कलर की डिस्कस कर रहे हैं हम। एक सेल का अंदर कलर, एक रेंज से एक पर्टिकुलर सेल भी, एक सेल इज बिलोंग्स टू वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द रेंज। सब सेल के लिए हम लिख रहे हैं, just is label, we want to apply the coding, we already discussed it, double click on that simple button, then range, after that we can type that one, we want to make it the copy and paste, save the time, we have little bit time only. So range A1 से लेकर suppose A10, after that cells में एक पर्टिकुलर सेल, फर्स्ट सेल मान लीजिए 1,1 डॉट इंटीरियर कर, interior color is equal to BBA. So now here friends, go to the MS Excel, change the design mode into execution mode. Observe रेंज, आपस में हमने रेंज तो डिफाइन किया है A1 से लेकर A10 तक, we are already defined in the back end, and the range definition is A1 to A10 cells. But if you are applying interior color, background color yellow to particular one single cell, so through this cell object, okay, after that we have discussed suppose एक रेंज के अंदर फॉन्ट अप्लाई करते समय पर कैसे देख सकते हैं। सपोज मान लीजिए एक्टिवेक्स, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, F20 फॉन्ट properties, नहीं, coding already we are changed. Since that coding we have discussed, there is no need to type the entire all the properties names. Suppose range, then reference A1 to A10 colon bracket dot, look at here, so that properties and objects, font dot, then font properties बोल्ड करना है, जैसे हमने कोडिंग में लिखा था एक चेक बॉक्स के लिए
bold है एक underline में. Bold is one of the property. Color another property. Like italic, underline. Okay. Suppose simply drag like this and tab or enter. Double click on that particular one. Just say font. इसमें डबल क्लिक कर सकते हो या तो डाउन एरो की से पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर ले जाने के बाद टैब दबा सकते. ओके, so there is no need to type the entire property name or there is no need to by heart that particular property name. Properties names रट्टा करने के लिए जरूरत नहीं है. डॉट टाइप करने के बाद ऑटोमेटिकली सिस्टम डिस्प्ले करेगा. अभी हमने इसका अंदर बोल्ड किया है तो रन करते समय पर देखते हैं. डेवलपर डिजाइन मोड को हटा दीजिए. बोल्ड इज इक्वल टू 2. ने कोडिंग लिखा है सो ट्रू आगे बताना है. ओके, so now this one is set button purpose. We are already setted. We want to go to the MS Excel sheet. Now it is running mode. Look at here, it will be changed. Unbold मैं नॉर्मली क्या, अगर आपको और भी फर्क पड़ना है, फॉन्ट साइज थोड़ा सेल साइज मैंने बड़ा किया है, सेंटर किया है. अब प्लीज ऑब्जर्व करिए. इफ आई वांट व्हेन आई रन दिस मींस फॉन्ट के अंदर क्या किया हमने, बोल्ड अप्लाई किया है. व्हेन आई रन दिस वन ना, एंटायर रेंज विल बी अप्लाइड. द फॉन्ट ऑब्जेक्ट bold property. Don't confuse here. Range is one of the object. Then font is another object of that particular range. Then bold is property of that font. If you want to see the coding, we want to enter into the coding. Look at here. Range one object. Font is another object of the range. Bold is the property of the font. एनेबल किया हम. जैसे हमने देखना है, ये देख लिया हमने. सपोज A1 से लेकर A10 तक गिनती करने के लिए हमने डिस्कस किया है. सो इनसेट एक बटन लिया है, देन प्रॉपर्टीज, आफ्टर दैट कैप्शन, काउंट. सपोज मैं इधर लिखा. Then here also font option is there. ये font कमेंट बटन के लिए ऊपर लेबल पर्पस, बट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन अभी हमारा रेंज के अंदर 10 नंबर्स अवेलेबल है, इसलिए अगर काउंट पर क्लिक करते समय पर वो काउंट बता देगा. फिर हमने लिखा अंदर काउंट के लिए, लिखा नहीं, अभी लिखेंगे dim t count as a tc as total count as integer. then अब t count को कैसे लेकर आ सकते हैं हम, प्रॉपर्टीज द्वारा. t count इज इक्वल टू रेंज. रेंज क्या हमारा, A1 से लेकर A10, रेंज डेफिनेशन क्लोज, देन आफ्टर दैट काउंट. अगर काउंट कितना आया हुआ है, अगर आपको डिस्प्ले करना है, सो अगेन रेंज कहाँ डिस्प्ले करना आप मेंशन कर सकते हो. मैं 11th में डिस्प्ले करना चाहता हूँ, सो 10 चेंज करूंगा अभी. 8 11 कोटेशन क्लोज रेंज का डॉट वैल्यू इज इक्वल टू t count. ओके, बट हियर प्लीज रेंज A1 to A10, t count, ये रेंज A11 डबल कोटेशन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू t count. एक्सेल शीट प्रोग्राम. अभी इधर कोई काउंटिंग नहीं है, हमने लिखा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम अभी. ठीक है, रेंज ऑब्जेक्ट का द्वारा काउंट अप्लाई किया है. अब देखिए इधर डिजाइन मोड को हटाया मैंने,
ये 10 आ गया। अगर सपोज कुछ डिलीट किया, मान लीजिए लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया स्टूडेंट डाटा को इंप्लीमेंट करते समय पर इस एंटायर मीन्स सेल्स को गिनती करेगा, ये काउंट, ये बहुत मतलब जो ना चीज के लिए वो तो अलग डिस्कस किया हमने। चलिए हम इतना मतलब ये करना चाहते हैं फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आना चाहिए, एक तो रेंज ऑब्जेक्ट, सेल ऑब्जेक्ट, फॉन्ट ऑब्जेक्ट, फिर इसका अंदर प्रॉपर्टीज। ओके, सो नाउ इसका बाद हमने क्लियर करने के लिए डिस्कस किया है एक रेंज के अंदर क्लियर कंटेंट्स नाम से। सो डेवलपर अगेन इंसर्ट एक बटन क्लियर कंटेंट्स, क्लियर कंटेंट्स के लिए प्रॉपर्टीज में गया मैं, पता होने के लिए जानबूझ के बाहर क्या कर रहा हूं मैं, ये कैप्शन प्रॉपर्टी के अंदर कैप्शन चेंज कर रहा हूं मैं, क्लियर कंटेंट्स। अभी कोडिंग लिखते हैं हम। फिर कोडिंग में क्या पता हमने, रेंज सेलेक्ट करें, रेंज, देन आफ्टर दैट A1 से लेकर कोलन ए सपोज 5 तक एमए पिन देख रहा है। ओके फ्रेंड्स, हाँ, देन आफ्टर दैट क्लियर, देखिए सी टाइप करने के बाद वो अपना प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा, क्लियर कंटेंट्स परसेंट। ओके, I want to run, change this design mode into execution mode. I want to close this one. Look at here. क्लियर कंटेंट पर क्लिक करते समय पर क्या हुआ, फर्स्ट से लेकर 5 तक हमने रेंज डिफाइन किया, उस रेंज का अंदर कंटेंट्स को क्लियर कर दिया। ओके, सो दैट इज द, अगर मान लीजिए एक चीज हमने डिस्कस किया, द 10 ABC NSTI, randomly you can type it, Noida, Kanpur, Kolkata, like you can type anything. If you want to clear this entire worksheet contents, then we are discussed one command. Worksheet 1, वर्कशीट कैप्शन में जाके सारे मतलब क्या है, क्लियर एंटायर वर्कशीट को, वर्कशीट शॉर्टकट में लिखा, वर्कशीट 1 डॉट क्लियर। Now we want to execute. I change the design mode into command mode. Here, what is that one? Cells dot sheet 1 cells dot clear contents. Sheet 1 cells dot clear contents. Guru sir, we have limited time. Okay, sir. Okay, sir. Only 1 minute. I want to close properly. Each one cells dot clear. Change this one. Friends, I received message from the NIMI department. So Robin sir was already telling
our time is finished. I want to hand over this section to Vin sir. So no problem, we will discuss in the remaining portion, means in next class we will discuss about worksheet and workbook methods. I can send this PPT into the group. Through this one you can practice in your system. Thank you friends, thank you once again, thank you for all of you. मैं सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बताना चाहता हूँ जिन्होंने अभी ज्वाइन किया. थैंक यू सर रविंद्र सर, थैंक यू सर. हेलो.